Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's start today another topic, a very important topic also, that is Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए। तो पहला पॉइंट ये है, what is the statement of the Wheatstone Bridge? Wheatstone Bridge principle states that if four resistances P, Q, R, S are arranged to form a bridge with a cell, okay, and one-way key K1 between the points A and C, and a galvanometer G and a key K2 between the points B and D. If galvanometer does not show any deflection, then bridge is balanced. In that case, condition comes out to be P by Q is equal to R by S. This is the Kirchhoff's statement of the Kirchhoff's Wheatstone bridge. This is the principle of the Wheatstone bridge. I repeat it. Wheatstone bridge principle states that if four resistances P, Q, R, S are arranged in such a way that they form a bridge. Bridge means which connects, okay? They form a bridge with a cell and one-way key between the points A and C, and a galvanometer G and key K2 between the points B and D. If galvanometer does not show any deflection, in that case P by Q is equal to R by S. In short, we have to prove that we call as balanced condition in the Wheatstone bridge. So when the bridge is balanced, means there is no current flowing through the galvanometer. उस condition में P by Q मुझे बराबर आएगा R by S की. देखिए, by using Kirchhoff's second law, I can easily calculate this expression, that is P by Q is equal to R by S. देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि जब भी आप किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करोगे तो पहला पॉइंट ये है, आपको पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, देन यू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. देखिए, अगर इस बैटरी से करंट टोटल निकल रही है आई, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट तक करंट बराबर रहेगी आई. नाउ अगर यहां से करंट I1 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे करंट कितनी जा रही है I1 थ्रू द रेजिस्टर P, तो डेफिनेटली यहां से जो करंट जाएगी दैट विल बी I माइनस I1. तो इसमें करंट पूरे ब्रांच में I माइनस I1 B तक होगी, क्योंकि B जो है इट्स ए जंक्शन नाउ, ओके. तो ब्रांच होगा फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर. सो दिस इज अ ब्रांच, इसमें करंट बराबर रहेगी. दिस इज अ ब्रांच, इसमें करंट बराबर रहेगी. इसमें भी करंट कितनी होगी. अब जब ये पॉइंट बी पे जाएगा, सपोज IG करंट जा रही है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो डेफिनेटली जो करंट बचेगी वहां पे दैट इज I1 माइनस IG, वो जाएगी थ्रू दिस ब्रांच, यानी थ्रू क्यों जाएगी, कितनी करंट है I1 माइनस IG. अब जब पॉइंट बी पे हम पहुंचेंगे तो यहां से करंट आ रही है I माइनस I1, यहां से करंट कितनी आ रही है IG, तो टोटल करंट जो S में जाएगी दैट विल बी I माइनस I1 प्लस IG. ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो डेफिनेटली यहां तक यही करंट होगी. अब पॉइंट सी पे जो टोटल करंट अब मुझे मिलेगी दैट विल बी, यहां से है कितनी I माइनस I1 प्लस IG, तो यहां से कितनी करंट है प्लस, बट प्लस I1 माइनस IG, ये टोटल करंट है. I1 एंड I1 कैंसिल आउट, IG एंड IG कैंसिल आउट. इसका मतलब टोटल करंट मुझे वापस मिली कितनी I, और वो तो होनी भी चाहिए. वो इसका मतलब इस ब्रांच में पूरी करंट कितनी रहेगी वापस I, निकली कितनी I, वापस कितनी I. समझ आया? सो
हमने अच्छी तरह किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाई किया है। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ टू गेट द कंडीशन, to get the balanced condition in the wheat stoppage. That means P by Q should be equal to R by S. Now, अब आप Kirchhoff's second law apply करने के लिए you have to take some closed loop and easily you can apply it. Okay? Now see, अगर मैं लूंगा पहला लूप closed loop ये वाला A B it is B yeah A B D A closed loop A B D A। चलिए ये लूप मैंने लिया, दिस द क्लोज्ड लूप A B D A। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ। यू आर मूविंग फ्रॉम A to point B, so your direction of calculation is in the direction of the current. So what will be the potential, positive or negative? It will be positive. Very good. But you know potential is product of current and resistance, so I1 into P, but it will be plus. तो ये हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया। अब ये देखिए आप, गैल्वानोमीटर में करंट कितनी, दैट इज IG, रेजिस्टेंस कितनी, दैट सपोज इट G। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड करंट फिर से एक जैसी है, अगेन इट विल बी प्लस, राइट। इसके बाद हम पहुंचे यहां पे, अब इसकी रेजिस्टेंस R है और डायरेक्शन ऑफ करंट I माइनस I1 अपोजिट है, सो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सो डेफिनेटली इट विल बी माइनस I माइनस I1 into R is equal to 0. So I can also write it I1P plus IG into G is equal to I minus I1 into R. Call this equation number A. तो मैंने अप्लाई किया किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर दिस क्लोज्ड सर्किट। अब मैं अप्लाई करूंगा फॉर क्लोज्ड सर्किट B C D B, इस वाले लूप के लिए जरा बताइए अगेन व्हाट विल हैपन। यहां से स्टार्ट करिए, नो प्रॉब्लम। ओके, या यहां से स्टार्ट करिए, आपकी मर्जी है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सो या यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा अगर यहां से स्टार्ट करेंगे, बताइए। इट विल बी I माइनस I1 इंटू, ये तो करंट फ्लो हो रही है इसमें, I माइनस I1, इट इज IG यहां से, नो सॉरी, इट इज I1 माइनस IG, इट इज I1 माइनस IG। ओके, ये करंट यहां से फ्लो हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी। अब आप उल्टा जा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और आप ऐसे जा रहे हो, बिकॉज ये आपकी कैलकुलेशन है। सो इट विल बी माइनस I माइनस I1 प्लस IG into S, right? Again, direction of current and direction of calculation are opposite, so again it will be minus IG into G is equal to 0, right? So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो है, ये याद रखिए आप, ये क्या, ये वाली इक्वेशन, बिकॉज आई नीड दिस इक्वेशन लेटर। सो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I माइनस IG माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G, राइट। या अगर इसको यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस वाले पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 माइनस IG इंटू I माइनस IG इंटू इट इज Q1। ओके, I माइनस IG इंटू Q माइनस IG इंटू G, इसको शिफ्ट करिएगा, दैट इज I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। ओके,
अब देखिए आप, अगर मैं बोलूं ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस्ड का मतलब जो करंट गैल्वानोमीटर से थ्रू हो रही है, जो करंट गैल्वानोमीटर से पास हो रही है वो जीरो है। इसका मतलब इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन IG इज इक्वल टू जीरो। जरा सबस्टिट्यूट करिए ये इस इक्वेशन ए और बी में और बताइए क्या मिलेगा मुझे मिलेगा I1P, ये तो जीरो बनेगा, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। ये बन गई मुझे इक्वेशन सी ना। अब मुझे इक्वेशन डी क्या बनेगी, I1, ये तो जीरो बनेगा, I1 इंटू क्यू, ये तो जीरो बनेगा, इज इक्वल टू I माइनस I1, ये तो जीरो बनेगा, G इंटू S। ओके, कॉल दिस इक्वेशन नंबर डी। अब ये इक्वेशंस मुझे मिले, अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं तो डेफिनेटली आफ्टर डिवीजन व्हाट विल आई गेट, I1P डिवाइडेड बाय I1Q is equal to I minus I1 into R divided by I minus I1 into S। I1 and I1 cancel out, I minus I1 cancel out, तो क्या मुझे निकला, P by Q is equal to R by S। और यही तो स्टेटमेंट था व्हीटस्टोन ब्रिज का, यही तो प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if four resistances P जो कि सर्किट में थे P Q R S are arranged to form a bridge with a cell and one way key K1 between the points A and C and a galvanometer G and key K2 between the points B and D. If galvanometer does not show any deflection, then the bridge is balanced. In that case, P by Q comes out to be R by S. So in this way, we calculated balanced condition in the Wheatstone bridge. अब ये कंडीशन मुझे कब जरूरत होगी, देखिए डेफिनेटली इसमें 4 रेजिस्टेंसेस है, तो अगर मुझे 3 रेजिस्टेंसेस का वैल्यू पता होगा, आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द 4th रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मुझे R का रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो डेफिनेटली अगर मुझे R का पता नहीं है, R मुझे बराबर आएगा P by Q into S। P पता है, Q पता है, S पता है, I can easily calculate value of the R। So the first application of Wheatstone bridges, it is used to find unknown resistance. It is used to find unknown resistance. That means if 3 resistances are given, then easily we can calculate one more resistance। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है दैट्स मीटर ब्रिज, जिससे हम इजीली, ये प्रैक्टिकल भी है आपकी 12th क्लास में, जिससे हम इजीली एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा एक चीज याद रखिए इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में, अब क्योंकि ये सर्किट्स में फिर मुझे बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, अगर मेरे पास दिस इज 1, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, ओके चलिए, it is like this. If it is P, Q, R, S and it is K2, it is K1, it is E। देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, आप यहां से करंट आ रही है, कितनी आई, और ये करंट इफ द ब्रिज इज बैलेंस, राइट, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहां और यहां कितनी करंट है, I1 फॉर एग्जाम्पल, यहां कितनी करंट है, I2, बट बेटर इज टेक I minus I1 क्योंकि वेरिएबल एक ही बनेगा फिर, तो I1 यहां करंट, I2 यहां करंट है, बट गैल्वानोमीटर
is in balanced condition. That means इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा, क्योंकि when there is no potential difference, no current flows. Go remember in balanced, इसका नाम मैंने शायद दिया था, it is B, it is D, it is A, it is C. So in balanced condition जो potential difference होगा B और D के दरमियान, that will be zero. When potential difference will be zero, that means no any current passes through the galvanometer. इसका मतलब ये I1 है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, ये पूरी I1 यहाँ जाएगी, और ये I2 है, ये पूरी करंट यहाँ जाएगी I2. ओके, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो टोटल करंट आएगी I1 प्लस I2, सो वापस I1 प्लस I2 इज व्हाट, दैट इज I. इसका मतलब इन वीड्स टू ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ओके, तो ये वाले दो रेजिस्टेंसेस जो है दे आर इन सीरीज, ये वाले दो रेजिस्टेंसेस जो है दे आर इन सीरीज, और फिर ये दो जो है दे आर इन पैरेलल. दैट मींस आई कैन कैलकुलेट इसकी रेजिस्टेंस सीरीज में, इसकी रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव 1, इट विल बी सिंपली P प्लस Q. ओके, इसकी रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव 2, दिस विल बी it will be P plus Q, it will be R plus S. Now P plus Q and R plus S, now they are in parallel. Okay, so आपको parallel में पता है 1 by R total will be equal to 1 by R effective 1 plus 1 by R effective 2. You can easily calculate. So remember this point, when the bridge is balanced, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर ये दो पैरेलल में. So we can easily calculate the resistance of this circuit by using the concept of series and parallel combination. Okay, so this was all about Wheatstone bridge. Next lecture में हम इसके कुछ numericals और इसकी जो practical form है this meter bridge, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे.